Okay, so that would be, yeah, by convolution theorem, Laplace inverse of phi 1 of s into phi 2 of s equal to integral 0 to t f1 of u into f2 of t minus u du. ये अपना convolution theorem का statement है. इसमें we will substitute phi 1, phi 2, f1u and f2 t minus u, ये substitute करेंगे. So let's see what we get. Laplace inverse of phi 1 phi 2 substitute किया, equal to integral 0 to t f1 of u is e raised to minus u into cos u, f2 of t minus u is cos of t minus u. तो ये substitution भी हो गया. अब हमें इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है. ओके, so here exponential function is there and two cos functions are multiplied. Okay, so when two cos functions are multiplied, that is two trigonometric functions are multiplied, इसमें हम trigonometric formula use करते हैं, right? So here we will use the formula for 2 cos A cos B. तो उसके लिए वो 2 missing है. Let's adjust that 2. यहाँ पर इसको in the form of question, this is same as the original question ना, तो वैसे लिख दिया. और यहाँ पर we have adjusted that 2. सो ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक 2 डिवाइड भी होगा, विच वी हैव टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल. So this is 1 by 2. So this is half into integral 0 to t e raised to minus u into 2 cos u cos of t minus u du. Now 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला क्या है? Cos of a plus b plus cos of a minus b. All right, so let's use that formula. ये हाफ इंटीग्रल 0 टू t, ये e रेज टू माइनस u. Now 2 cos a is u and cos b is t minus u. So this is cos of a plus b, okay, plus cos of a that is u minus b. तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये मिलेगा माइनस t plus u. Okay, so this is what we get. Half integral 0 to t e raised to minus u cos of u plus t minus u plus cos of u minus t plus u du. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस गिव्स अस हाफ इंटीग्रल 0 टू t e raised to minus u. यहाँ पर u and minus u gets cancelled and we are left with t only. So we get cos t. Here u and u gets added, so we get plus cos 2u minus t du. Okay. Now we'll open this bracket. तो ये bracket open किया तो we get half integral 0 to t e raised to minus u into cos t plus e raised to minus u into cos of 2u minus t with respect to u. Okay. Now here I am just separating the integral for clarifying one point. एक point को थोड़ा clear करने के लिए मैं ये integral को separate कर रही हूँ. Okay. Now, while separating the integral, I am taking the constants outside. Now, when I say constant, constant with respect to the integral, okay? तो ये half common है. ये integral of the first term में अगर आपने देखा, since the integration is with respect to u, यहाँ पर e raised to minus u है, ये तो function of u है, but ये जो cos t है, इसमें कोई u नहीं है. So this is a constant as far as the integral is concerned. तो ये cos t को हमने बाहर निकाल दिया. तो वी गेट cos t इंटू इंटीग्रल 0 टू t, यहाँ सिर्फ e रेज टू माइनस u बचा विथ रिस्पेक्ट टू u, प्लस यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी u प्रेजेंट है, cos फंक्शन में भी u प्रेजेंट है, तो इन दोनों में से किसी को बाहर नहीं निकाल सकते. सो दिस इज इंटीग्रल 0 टू t e रेज टू माइनस u इंटू cos ऑफ 2u माइनस t du. Okay, now this is what we have got. Let's perform the integration. ये पहला वाला इंटीग्रल है, ये तो अपना स्टैंडर्ड इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल है. ओके, ये जो दूसरा वाला इंटीग्रल है, इंटीग्रल 0 टू t e रेज टू माइनस u cos ऑफ 2u माइनस t, यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाइड है, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा कोसाइन. तो क्या करेंगे, यहाँ पर u इंटू वी रूल यूज करेंगे. करेक्ट? नहीं, नो अमित, क्या करेंगे फिर? विल यूज द डायरेक्ट
Anupam is saying yes. Are we going to use u into v formula? या e रेस टू ए टी इंटू कॉस बी टी का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर. ओके यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ई रेस टू ए टी इंटू कॉस बी टी का जो इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो यूवी रूल यूज करके ही आता है. ओके बट डायरेक्टली यूवी रूल नहीं यूज करेंगे बिकॉज दैट गिव्स यू अ रिकरिंग इंटीग्रल, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा. तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्टली याद रखेंगे, करेक्ट, और वो यूज करेंगे. सो लेट अस सी, यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है. ये कॉस बी टी सिर्फ नहीं है, लाइक कॉस ऑफ टू यू सिर्फ नहीं है, उसके साथ एक और कांस्टेंट है. दिस माइनस टी इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू यू. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी देखेंगे हम लोग. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इंटीग्रेट नाउ. तो पहला ये इंटीग्रल, ये हाफ है cos t हियर. इसका इंटीग्रल क्या है, e रेस टू माइनस यू अपॉन यू के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, -1, उसको डिवाइड किया. दिस इज टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू t. ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू ए टी कॉस बी टी प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू टी. ओके हमने सिर्फ बी टी के साथ ये फॉर्मूला देखा. अगर बी टी के जगह पे बी टी प्लस सी है तो भी इट इज द सेम फॉर्मूला, e raised to at upon a square plus b square. B is the coefficient of t in the cos function into a cos plus b sin. तो a cos of bt plus c प्लस b साइन ऑफ bt प्लस c. तो इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज किया है. देखो यहाँ पर a क्या है -1 और b क्या है 2. तो in this formula when we put my a as -1 and b as 2 we'll get this expression. Let's check. e raised to minus u, ए के जगह पे -1 डाला तो -1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर इंटू ए इज -1 कॉस ऑफ 2u माइनस टी प्लस बी इज 2 साइन ऑफ 2u माइनस टी टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू t. तो ये वाला हमने फॉर्मूला इसमें यूज किया है. दिस इज द सेम फॉर्मूला दैट वी हैव सीन बिफोर. ओके सिर्फ कॉस बी टी था, अभी बी टी के जगह पे बी टी प्लस सी है. स्टिल द फॉर्मूला विल बी द सेम, ओनली बी टी के जगह पर बी टी प्लस सी आएगा एंगल. ओके ऑल राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस वुड बी हाफ कॉस टी. इसमें लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं. तो पहले t डाला तो यू गेट e रेस टू माइनस टी अपॉन -1 माइनस, नेक्स्ट हमने 0 डाला तो वी गेट e रेस टू -0 अपॉन -1. ओके यहाँ पर अब t सब्सटीट्यूट करेंगे, थोड़ा केयरफुली, लंबा एक्सप्रेशन है. तो पहले हमने t डाला तो e रेस टू माइनस टी अपॉन, नाउ दिस इज सी 1 प्लस 4 दैट इज 5 इंटू माइनस कॉस ऑफ 2t माइनस टी प्लस 2 इंटू साइन ऑफ 2t माइनस टी. तो ये हमने t डाला तो ये मिलता है माइनस, नेक्स्ट वी पुट 0 सो वी गेट e रेस टू -0 अपॉन 5 माइनस कॉस ऑफ 0 माइनस टी इज माइनस टी प्लस 2 साइन ऑफ 0 माइनस टी इज माइनस टी. तो यहाँ पर हमने लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ओके ओके दिस इज द सेम स्टेप. So now let's see the simplification. Here we get half cos t into, now this is minus e raised to minus t. This minus and minus becomes plus, e raised to minus 0 is same as e raised to 0 which is 1. Okay, तो ये वाला simplification हो गया. अब यहाँ पर simplify करते हैं तो we get plus e raised to minus t upon 5 minus 2t minus t becomes t. So this is cos t plus 2 sin t minus e raised to minus 0 is 1 upon 5 minus of cos of minus t is cos t. Okay, now here we have got 2 sin of minus t. Sin of minus t is minus sin t. Sin जो है minus sin को बाहर थ्रो करता है, तो यहाँ प्लस है, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो वी गेट -2 sin t. ओके तो ये सिंप्लीफिकेशन किया. नाउ थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. सो वी गेट हाफ, ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस कॉस टी इंटू 1 इज कॉस टी. ओके हियर वील गेट this plus e raised to minus t upon 5 into minus cos t gives us minus e raised to minus t into cos t upon 5
plus e raised to minus t upon 5 into 2 sine t gives us plus 2 e raised to minus t into sine t upon 5 minus 1 upon 5 into minus cos t gives us plus cos t upon 5 minus 1 upon 5 into minus 2 sin t gives us plus 2 sin t upon 5. सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है. ओके, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये मिला. यहाँ पर देखो ये जो टर्म है माइनस ई रेज टू माइनस टी कॉस टी और ये माइनस 1/5 टाइम्स ई रेज टू माइनस टी कॉस टी, ये दोनों सेम टर्म्स है, कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो इसको कंबाइन कर सकते हैं. तो इसका कोएफिशिएंट बनेगा ओके, इसको फ्रैक्शन में भी कोएफिशिएंट्स कंबाइन करके कर सकते हैं या फिर इसमें एक और काम कर सकते हैं. वी कैन सी दैट 5 इन द डिनोमिनेटर, तो ये हम डिनोमिनेटर को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर. तो विल गेट 1/10 एज द डिनोमिनेटर हियर. ओके, तो ये 1/10 मिला. कॉमन निकालने का रूल क्या है, जहां है वहां से निकालो, जहां नहीं है वहां मल्टीप्लाई करो. ओके, तो यहाँ पर अपॉन 5 नहीं है, तो we'll get minus 5 e raised to minus t cos t plus 5 cos t. यहाँ पर है डिनोमिनेटर 5 तो उसको कॉमन निकाला, तो we get minus e raised to minus t cos t plus 2 e raised to minus t sin t plus cos t plus 2 sin t. Okay, now we will combine the terms. So ये बनेगा 1/10 minus 5 e raised to minus t cos t minus e raised to minus t cos t is minus 6 e raised to minus t cos t. Here another thing that can be combined is plus 5 cos t and this plus cos t, तो ये बन जाएगा plus 6 cos t. बाकी ये टर्म तो अकेला है, तो इसको ऐसे लिख दिया plus 2 e raised to minus t sin t. ये वाला टर्म भी अकेला है plus 2 sin t, and that is the final answer. How did you find the problem? How did you find the problem? No comments? Nice, lengthy, easy but lengthy. Yes, it's very lengthy. Little bit messy भी है. Yes, little bit confusing. Sonia, correct. What I meant by little bit messy मतलब terms से एकदम sweet terms नहीं है, बहुत सारा confusing terms है. But did you all understand this? Amit is saying thoda easy, thoda hard. Okay. Okay. All right. So this was the first problem. Okay. आज के लिए एक और प्रॉब्लम करेंगे सिर्फ. ओके, ऑल ऑफ अस आर अप टू इट नाउ. एक और प्रॉब्लम करने के लिए, ये वाला थोड़ा भारी था बट वन मोर प्रॉब्लम वी विल सॉल्व. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है s रेज टू 4 डिनोमिनेटर है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s रेज टू 4 प्लस 8s स्क्वायर प्लस 16. बट ये s रेज टू 4 वाले डिनोमिनेटर में क्या खास बात है? s रेज टू 4 डिनोमिनेटर की जब बात मैंने की थी शुरू में, आई टोल्ड यू देयर आर 3 टाइप्स. द फर्स्ट टाइप वाज वेयर यू हैड s रेज टू 4 एंड s स्क्वायर टर्म, और उसको आपने जब इट इज क्वाड्रेटिक इन s स्क्वायर, उसके रूट्स निकाले तो दो डिफरेंट रूट्स थे. नेक्स्ट हमने s रेज टू 4 और कांस्टेंट टर्म वाला डिनोमिनेटर देखा. अब ये तीसरा, यस अमित, इवन पावर्स है, s रेज टू 4 और s स्क्वायर है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है. Okay, if you see s raised to 4 plus 2 into 4s, so 2 into 1 minute, 2 into 4 into s square. Okay, and this is 4 square. मतलब if you consider s square as a and 4 as b, this is a perfect square. A square will be s square का square, that is s raised to 4. 2ab will be 2 into s square into 4, so that is 8s square, and b square, that is 4 square, will be 16.
तो ये जो डिनोमिनेटर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको फिर से m के फॉर्म में लिखने का, इसका आप रूट्स फाइंड आउट करोगे तो आपको एक ही रूट देगा कैलकुलेटर, दैट इज बिकॉज इट इज अ रिपीटेड रूट। ओके, सो यहाँ पर डायरेक्टली हमको दिख रहा है, इसके लिए मैंने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। सो दिस इज बेसिकली लप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर। ओके, हेलो, सो इसको हम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल राइट दिस एज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ s। तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर है तो एक डिनोमिनेटर रहेगा s स्क्वायर प्लस 4, दूसरा डिनोमिनेटर भी रहेगा s स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि s है, एक न्यूमरेटर रहेगा 1 और दूसरा न्यूमरेटर रहेगा s। You can put this numerator anywhere, s वाला numerator, I have put it in the second one. Okay, तो इसको दो फंक्शन में लिखा। अब जो इजियर फंक्शन है उसको फाइव टू एस लेना है। यहाँ पर दोनों भी इजी है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो यू कैन टेक एनी वन एज फाइव टू। आई एम टेकिंग दिस एज फाइव टू एस बिकॉज ये डायरेक्टली इसका लप्लास इनवर्स कॉस आता है बिना कुछ एडजस्टमेंट किए। ओके, so we are going to take Laplace, we are going to take phi 1 of s as 1 upon s square plus 4 and phi 2 of s as s upon s square plus 4। ओके, तो ये अपना स्टेप 1 हो गया जहां पर हमने phi 1 और phi 2 को आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट वी फाइंड लप्लास इनवर्स ऑफ phi 1 s इक्वल टू लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो ये स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ पर दिस 4 इज 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें 2 चाहिए स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करने के लिए। 2 एडजस्ट किया, सो वी गेट 1/2 इंटू लप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 विच इज 1/2 इंटू साइन 2t। तो ये है हमारा f1 ऑफ t। ओके, अब ये f1 ऑफ t मिल गया, इसको प्रिपेयर करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए। सो दैट वुड बी f1 ऑफ u इक्वल्स टू 1/2 sin 2u। ओके, तो हमारा f1 ऑफ u मिल गया। नेक्स्ट वी फाइंड आउट लप्लास इनवर्स ऑफ phi 2 ऑफ s, तो विच विल बी लप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 विच इज cos 2t। तो ये है हमारा f2 ऑफ t। अब f2 मिल गया है, इसको प्रिपेयर करेंगे हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए। वी नीड f2 ऑफ t minus u for that. So in this, when we replace t by t minus u, we get cos 2 into t minus u। तो ये जो है इसको ऐसे भी रख सकते हैं, बट एज आई टोल्ड यू जहाँ जहाँ हम लोग थोड़ा ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विल सिंप्लीफाई इट, तो बाद में वो इजी पड़ता है। सो हियर विल टेक दिस टू इनसाइड, वी गेट दिस एज cos ऑफ 2t minus 2u। तो ये अपना f1u है, ये अपना f2 ऑफ t minus u है। सो दिस कंप्लीट्स आर स्टेप 2। नेक्स्ट स्टेप 3 के लिए हमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, that is by convolution theorem Laplace inverse of phi 1 of s into phi 2 of s equal to integral 0 to t f1 of u into f2 of t minus u du। ओके, अब इसमें phi 1 phi 2 f1 of u and f2 of t minus u सब्सटीट्यूट करेंगे। So this will be Laplace inverse of 1 upon s square plus 4 into s upon s square plus 4 equal to integral 0 to t f1u is half sin u and f2 of t minus u is cos of 2t minus tu du। ओके, तो ये हमें सब्सटीट्यूट करने के बाद मिला। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, तो वी हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो ये हाफ को बाहर निकाला और यहाँ पर एक 2 चाहिए, तो वो एक 2 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी एक 2 मल्टीप्लाई करना है। सो दिस half and with 1 2 multiplied in the denominator will give us 1/4 into integral 0 to t 2 sin u into cos of 2t minus 2u with respect to u। Okay, so now this would be 1/4 integral 0 to t। Here we are using the formula 2 sin a cos b का formula है, which is sin of a plus b plus sin of a minus b। Okay, तो ये है sin of a plus b plus sin of a
माइनस बी, सो दैट इज -2t + 2u। तो ये फॉर्मूला यूज किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी 1/4। यहाँ पर 2u और -2u कैंसिल हो जाता है, सो दिस बिकम्स sin 2t plus here 2u and 2u gets added, so we get sin of 4u minus 2t. Okay, now we have to integrate this. All right, तो ये इंटीग्रेट करने के लिए आई एम जस्ट सेपरेटिंग द इंटीग्रल फॉर अ रीजन। ये पिछले वाले प्रॉब्लम में हमने सेपरेट नहीं किया था। यहाँ पर यू कैन सी व्हाई आई एम सेपरेटिंग इज बिकॉज ये जो पहला वाला टर्म है इसमें कोई u नहीं है, तो ये जो sin 2t है इज एक्चुअली अ कांस्टेंट। ओके, तो उसको एम्फोसाइज करने के लिए आई एम सेपरेटिंग इट। तो ये 1/4 कांस्टेंट है, तो पहला वाला आएगा इंटीग्रल 0 to t sin 2t du। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये sin 2t इज अ कांस्टेंट एज फार एज दिस इंटीग्रल इज कंसर्न्ड। तो sin 2t को बाहर निकाला तो अंदर बचा 1, कांस्टेंट 1 बचा। ओके, सो वी हैव गॉट 1 du प्लस इंटीग्रल 0 to t sin 4u minus 2t। इसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें फंक्शन ऑफ u है विथ रिस्पेक्ट टू u। ओके, अब विल परफॉर्म द इंटीग्रेशन। सो दिस इज 1/4 sin 2t, 1 का इंटीग्रल है u 0 to t प्लस अब साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस, सो वी गेट माइनस कॉस 4u minus 2t। इंटीग्रल इज विथ रिस्पेक्ट टू u, तो u के साथ 4 मल्टीप्लाइड है तो वो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें हम अपना लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे। सो फर्स्ट इसमें विल गेट 1/4 sin 2t इज एज इट इज t -0 सब्सटीट्यूट किया। ये माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हम t सब्सटीट्यूट करेंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी माइनस ऑफ cos 4t minus 2t अपॉन 4। सेकेंड लिमिट के लिए दिस माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और सेकेंड लिमिट है तो सब्ट्रैक्शन, सो दैट बिकम्स प्लस cos 0 minus 2t अपॉन 4। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस बिकम्स 1/4। नाउ दिस t minus 0 इज नॉट इन द एंगल, ये sin 2t के साथ मल्टीप्लाइड है, तो t minus 0 इज t, उसको हमने यहाँ लिखा। वी गेट t इंटू sin 2t माइनस cos of 4t minus 2t is cos of 2t upon 4 plus cos of 0 minus 2t is cos of minus 2t, बट cos के अंदर माइनस है तो cos उसको खा जाता है, राइट? सो दैट वुड बी cos 2t। cos of minus theta is cos theta, तो ये cos 2t upon 4। Now you can see ये minus cos 2t upon 4 and plus cos 2t upon 4 is can get cancelled, तो हमारे पास क्या बचता है t sin 2t upon 4 and that's it. That is the final answer. ये वाला थोड़ा इजी लगा? ओके, आज हमने जो 2 प्रॉब्लम किए हैं वो समझ में आया आपको अच्छे से? ओके, टुडे आई एम टेकिंग ओनली 2 प्रॉब्लम्स, आई हैड टोल्ड यू, बिकॉज जो थर्ड वन है वो थोड़ा लेंदी है। इट इज इजी और उसमें थोड़ा कैलकुलेशंस ऐसे थोड़े फाइन कैलकुलेशंस है वेर वी नीड टू बी मोर अलर्ट एंड मोर फोकस, सो दैट आई विल टेक इट अप इन टुमारोज लेक्चर। Okay, so today I'm leaving you early. So that is all for today. Take care. Have a nice day. If you have any doubts, you can ask. Thank you, dears. कोई डाउट है किसी को? Okay. Bye, dears. Take care.